بات تو یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جسے اہل اسلام نے ایمان لانے کے بعد فرض اعظم کہا ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ جس کو اہم الفرائض بھی کہا گیا ہے اور فرض اعظم ہے یہ، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 110 سے زائد صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ احناف اس کو سخت فاسق و فاجر کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے، لیکن تینوں ائمہ کرام، حضرت امام مالک ہو، امام شافعی ہو یا امام احمد ابن حنبل ہو، یہ حضرات کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کے ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ مزید فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اس آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ حالانکہ بات یہ کی جاتی ہے کہ حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ، ٹیڑے نہ چلو سیدھے چلو، یعنی جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی ضد بیان کی جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ تو یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ نماز قائم کرو، بے نمازی مت بنو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا وہ کافر و مشرک ہو گیا۔ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر و مشرک ہو گیا۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا دھیان سے سنو، لوگ بہت مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے، وقت نہیں ملتا ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا اندازہ تو کرو، صحابہ کرام اور تابعین کی اکثریت یہ بات کہہ رہی ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کافر و مشرک ہو گیا۔ اور اس کی تشریح کیا کی جا رہی ہے؟ اگرچہ احناف اس کو سخت فاسق و فاجر کہتے ہیں، لیکن اندازہ تو کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ انسان نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز کیوں ترک کرتا ہے؟ کبھی کھیلتے کھیلتے نماز ترک کرتا ہے، کبھی کھاتے کھاتے نماز ترک کرتا ہے، کبھی دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز ترک کرتا ہے، اللہ اکبر، کبھی دوسرے کاموں میں نماز ترک کرتا ہے۔ تو شرک کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، میں پھر کہتا ہوں اگرچہ احناف یہ بات نہیں کرتے، تعویل کرتے ہیں، مگر اس کی تشریح کیا ہو رہی ہے کہ دکان ایک طرف بلا رہی تھی اور اللہ اپنی طرف بلا رہا تھا، غذا اپنی طرف بلا رہی تھی، اللہ اپنی طرف بلا رہا تھا، دنیا کے کھیل کود اپنی طرف بلا رہے تھے، اللہ اپنی طرف بلا رہا تھا، تم نے خدا کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف اپنا رخ کیا۔ اب بتاؤ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک کیا ہے؟ اگرچہ ہم بے نمازی کو مشرک نہیں کہتے، لیکن یہ صحابہ کا فتویٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ اللہ اکبر کہ نماز ترک کرنے والے کے لیے کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ سرکار برقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس کا لغوی ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ ایک دن میں 5 وقت نمازیں ترک کرنے کے بعد اپنے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتا، دکان کی محبت میں نماز جا رہی ہے، کاروبار کی محبت میں نماز جا رہی ہے، بال بچوں کی محبت میں نماز جا رہی ہے، دوست و احباب کی محبت میں نماز جا رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے وہ فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، ہمیں احساس ہے کہ وہ فلاں پر فلاں نے فتویٰ دیا ہے، بے نمازی ہو کر ہم کہتے فلاں پر فلاں نے، تجھ پر رسول اللہ کا کیا فتویٰ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے کیا کہا ہے؟ اگرچہ ائمہ احناف اس میں جو ہے وہ تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے نماز جان بوجھ کے ترک کر دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا، یا وہ کفر کی حد تک
दिया जाएगा। आप सोचते होंगे कि इनमें अहनाफ तो तावील करते हैं, लेकिन अहनाफ भी आखिर में वहीं पर पहुंचते हैं जो सब कह रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज में सुस्ती और गफलत करता है, मुझे डर है कि जब मरेगा तो काफिर होकर मरेगा, मरने से पहले उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो तो सही। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में नकल करते हैं कि जो बिला उज़्र शरई रुकू को दुरुस्त सही न करे, पीठ को सीधी न रखे, डर है कि जब मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। जब रुकू, नमाज पढ़ने वाला रुकू सही न करे, नमाज में चोरी करे, उसके कुफ्र पर खात्मे का डर है। तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते उनका अंजाम क्या होगा? क्या हमारे जिस्म में इतनी ताकत है, हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत है कि हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकें? अपना हाल तो ये है, मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हमने रसूल पाक मुस्तफा करीम ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा, 99 सांप। और उनमें से एक सांप की कुव्वत और ताकत का हाल यह है कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ उसके डंक की वजह से रेजा रेजा हो जाए। एक सांप अगर पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। 99 सांप मिल करके उस एक मुर्दे को डसेंगे तो उस वक्त उसका अंजाम क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी? कहां जाएगी दुकान, कहां जाएगा मकान, कहां जाएगा कारोबार, कहां जाएगा अल्लाह अकबर दोस्तों का रिश्ता, कहां जाएगा बीवी बच्चों का रिश्ता? बेवफा दुनिया के लिए अल्लाह की इबादत से मुंह फेरने वालों को कम से कम यहां तो इबरत होनी चाहिए। और यहां तक इरशाद फरमाया गया, दिल के कानों से सुनो, अगर कील ठोकते वक्त हथौड़ी उंगली पर लग जाए, कोई उंगली अगर पिस जाती है अपने हाथ की हथौड़ी से, वो हथौड़ी जिससे हम कील ठोक रहे हो और अपने ही हाथ से अपनी उंगली पर हथौड़ी पड़ जाए तो इंसान कितना बेचैन और बेकरार होता है। सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया उसको 80,000 साल तक के जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। फज्र की नमाज बिस्तरों में तर्क करने वालों, गपशप करते हुए, मोबाइल खेलते हुए, गेम खेलते हुए नमाज का वक्त गुजार देने वालों, जरा सोचो तो सही, 80,000 साल किसको कहते हैं? एक वक्त की नमाज में 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता, 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, और जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है उसका जहन्नम में जाना यकीनी है। यह हदीस कंजुल उम्माल की है। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्दनाक फरमान सुनो। यह हदीस मुस्नद अहमद की है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई नमाज छोड़ देता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के जिम्मे से बाहर हो जाता है। यानी अब अल्लाह रसूल का कोई जिम्मा उस पर नहीं होगा। यानी अल्लाह उसके रसूल की, इसकी शरह करते मुहद्दिसीन ने लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह उसके रसूल का उसके साथ कोई वादा नहीं है। किसके लिए? जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, अल्लाह उसके रसूल के जिम्मे से वो खारिज हो गया, वो बाहर हो गया। अफसोस, यहां तो नमाजें छूटती है, माथे पे शिकल तक नहीं आता। और सुन लो, जिसको कोई पनाह न दे उसको अल्लाह उसके रसूल की पनाह है, और जिससे अल्लाह उसके रसूल पनाह उठा ले, न वो दुनिया में महफूज है न वो आखिरत में महफूज है। आज उम्मत मुस्लिमा जिल्लत के अमीक गार में क्यों गिर रही है? आज उम्मत मुस्लिमा पर मुसीबतों के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? आज उम्मत मुस्लिमा दर दर की भिखारी क्यों हो गई है? आज उम्मत मुस्लिमा गमों से निढाल क्यों है? आज उम्मत मुस्लिमा तबाही के दहाने पर क्यों है? आज हमारी औलाद हमसे बेवफा क्यों है? आज हमारे बच्चे हमसे एतमाद क्यों खोए हुए हैं? मियां बीवी का प्यार लूट क्यों गया? घर घर में आग क्यों लग गई? उसकी वजह यह है तुम अल्लाह रसूल के जिम्मे से खारिज हो गए, इसलिए सारी बहारें रूठ गई। काश हम अल्लाह के घर को आबाद करते। हमने तो नमाज को एक रस्म समझ करके छोड़ दिया, लेकिन पता क्या था कि जिस नमाज को छोड़ देंगे, अरे जब एक वक्त की नमाज को छोड़ने के बाद कुदरत का दस्ते रहमत तुम्हारे सरों से हट जाता है, तो जो सारी जिंदगी कभी मस्जिद में ना आए, और जो अगर आए भी तो हफ्ते में एक मरतबा सिर्फ 2 रकात पढ़ने के लिए आए, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? जिसका सहारा कुदरत बन जाए, अगर वो अबाबिल भी हो, नन्ही नन्ही अबाबिल,
तो वो हाथियों को तबाह करती थी। कुदरत जिस पे दस्ते रहमत रख दे, वो छोटी भी हो तो वो 3 मील के फासले की आवाज सुनती और देखती नजर आती है। और कुदरत अगर किसी से दस्ते शफकत हटा ले तो फिर बड़े बड़े बादशाहों को तबाही और बर्बादी का मुंह देखना पड़ता है। हमने नमाज को समझा क्या? हम तो यही समझ बैठे कि ये तो वाइजों का डराना है, ये तो वाइजों का धमकाना है, ये तो खुतबा का मस्जिदों की तरफ बुलाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये मेरे आका मुस्तफा जान रहमत का फरमान है। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि सरकार ने फरमाया, अल्लाह उसके रसूल के जिम्मे से वो बाहर है। यहां एक बात सी फर्ज करूं, क़यामत का मंजर जब हमें याद आता है तो पीता पानी होता है, लेकिन बस एक ही सहारा, एक ही उम्मीद हमारी धारस बनाती है कि वहां बहुत कुछ है, लेकिन हुजूर का सहारा अगर है तो सारी मुसीबतें काफूर है। ये सबको पता है। पसीने में डुबकियां होगी, बदन पे कपड़े नहीं होंगे, सूरज इंसान के वजूद को झुलसा रहा होगा। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ सवा हाथ का या सवा नेजे का एक हाथ का फासला होगा। जबानें सूख करके सीने पे लटक रही होगी, मां बाप से रिश्ते टूट चुके होंगे, दोस्त दुश्मन बन चुके होंगे, ये सबको पता है। जमीन शोले उगल रही होगी, आसमान आग बरसा रहा होगा, कुदरत इतने गजब का इजहार कर रही होगी कि न इससे पहले न इसके बाद इस तरह के गजब का इजहार किया गया। यही सबको पता है। लेकिन एक उम्मीद बनती है, जहां अंबियाए किराम नफ्सी नफ्सी कहेंगे, वहां एक उम्मीद बनती है कि हमारा वसीला इतना मजबूत है क़यामत में कि कुदरत ने उसके साथ वादा किया है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अब सोचो, जब किसी का सहारा काम ना आया तो आमिना का लाल काम आया। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर से पिदर को खबर ना हो। मगर सोचो, जब इंसान चला रसूल पाक के पास शफाअत की भीख मांगने के लिए, या अपने हाथों की बेड़ियां कटवाने के लिए, या पैरों की जंजीरों से निजात के लिए, या हौज़े कौसर से जाम पीने के लिए, बोलो बोलो, वहां तो खलीलुल्लाह को भी उनकी हाजत होगी, मुझे और आपको क्यों ना होगी? सबको उनकी हाजत होगी, सब उनके मोहताज होंगे, सबकी रिसाई उन तक होगी, सिर्फ उनकी रिसाई खुदा तक होगी। अंबिया जिसकी बारगाह तक जाकर रुक जाएंगे, वो क़यामत के दिन बारगाह रिसालत माब होगी। मगर सोचो, गौर करो, उस मंजर को जहन में लाओ, न माँ का माए, न बाप का माए, न भाई का माए, सारे रिश्ते जहां तारे अनकबूत की तरह बिखर जाए, मकड़ी के जाले की तरह बिखर जाए, वहां पर एक सहारा है, आमिना के लाल का, अब्दुल्ला के लख्त जिगर का, शाफा यौमुन नशूर का। हम भी जाकर के खड़े हो, हम पर भी निगाह करम करना। अल्लाह न करे अगर उस बारगाह अर्श मकाम से, उस बारगाह गैरत वाला से ये जवाब मिल जाए, क्या तूने मेरा फरमान न सुना था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया। आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि उस बारगाह गैरत मकाम से ये जवाब मिले। आप मुझे बताएं, अगर वहां से ये जवाब मिल गया तो किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? शफाअत की भीख कहां से तलब करोगे? उस दिन तो सब के सब कह रहे होंगे रब्बे नफ्सी नफ्सी, रब्बे हबली तो सिर्फ एक ही की जबान पे होगा। और उस रसूल पाक ने फरमा दिया, और सुनो, हुजूर जहां रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह की मखलूक में उनसे ज्यादा गैरत वाला कोई हो नहीं सकता। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते, गजब से उनके खुदा बचाए। उनकी शान गैरत को भी दिमाग में रखना। बिस्तरों में नमाजें तर्क करने वालों, एसी की ठंडक में नमाजों को छोड़ने वालों, लड़कियों के कंधों पे हाथ रख के दरिया के किनारे बैठकर मेरे अल्लाह की इबादत के वक्त तय्याशी करने वालों, दुकान और मकान की मोहब्बत में मेरे रब के सजदों को जाय करने वालों, मेरे नबी की गैरत यह है, हुजूर कहते हैं खुदा की मखलूक में मुझसे ज्यादा कोई गैरत वाला नहीं है। अगर उन्होंने इजहार गैरत किया, किसके चौखट पे जाओगे? कहां हाथ फैलाओगे? कहां जाकर के दुआई दोगे? खुदा की इज्जत की कसम, जहां मां काम ना आए उनका सहारा काम आए। आज हमने नमाज को यूं छोड़ दिया कि हमारे कानों पे जू तक नहीं रेंगती, नमाजें तर्क होती। खाते खाते, खेलते खेलते, क्रिकेट देखते देखते नमाजें छोड़ते, ये शॉट ना छूट जाए इसलिए नमाज छोड़ जाए। और याद रखो, एक नमाज छोड़ दी, उसके बदले में पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहोगे, उसकी फजीलत नहीं मिलेगी जो छूट गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, फजर की सिर्फ 2 रकअत पूरी दुनिया और माफिया से बेहतर है। जब फजर की 2 रकअत सुन्नत की बेहतरी का ये आलम है, तो फर्ज की शान का आलम क्या होगा? बल्कि 2 रकअत को तो जन्नत पर भी तरजीह दी गई। मौलाए कायनात फरमाते, अगर मेरी मर्जी पे छोड़ दिया गया
کہ जन्नत में जाओगे या 2 रकअत अदा करोगे तो मैं जन्नत पर 2 रकअत को तरजीह दूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है, जन्नत और 2 रकअत में मेरे यार की खुशी है। और हमने तो रकअतें छोड़ दी। मस्जिद में ऐसा लगता है कि जैसे माज़ अल्लाह कोई हम पर डंडे बरसा रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और सुन ले, इसको शोबुल ईमान के अंदर बयान किया गया है। आका इरशाद फरमाते कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई हिस्सा उसका नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो नमाजों की पाबंदी करेगा क़यामत के दिन नमाज उसके लिए सनद होगी, उसके लिए हुज्जत होगी। और जिसने नमाज को छोड़ दिया न उसके लिए कोई सनद है न कोई हुज्जत है, उसका ठिकाना कहां है? वो हामान, कारून और उबई बिन खलफ के साथ जहन्नम में जाएगा। किन के साथ? नमाज छोड़ने वालों का। बहुत आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये तो विधि अकीमिस्सलाह की नमाज कायम करो। जो नहीं पढ़ते उनका ये हाल है। अब जो पढ़ते हैं, कुरान कहता है आगे लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, या नमाज कायम कर मेरी याद के लिए। अब जो पढ़ते हैं वो खुश हो रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं। लेकिन एक बात यह है, एक नमाज वो है जो तिजारत है और एक नमाज वो है जो इबादत है। अब हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? तिजारत करते हैं नमाज पढ़ के या इबादत करते हैं? पहली बात, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं नमाज पढ़ेंगे तो रोजी में बरकत होगी, नमाज पढ़ेंगे तो मेरी मुसीबत दूर होगी, नमाज पढ़ेंगे मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता आएगा, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह औलाद अता करे। ये सब मिलता है नमाज पढ़ने से। लेकिन नीयत अगर ये है तो फिर ये तिजारत है, ये इबादत नहीं। अगर नमाज से मुसीबतें दूर होती तो जनाब यूसुफ ने यह नियत क्यों नहीं की नमाज पढ़ते वक्त कि मिस्र के कैद खाने से निजात मिल जाए? अगर नमाज से बीमारियों को शिफा मिलती है, जरूर मिलती है। जनाब अय्यूब ने नमाज के वक्त ये नियत क्यों नहीं की कि मर्ज से शिफा मिल जाए? अगर नमाज ही से औलाद मिलती और बेशक मिलती है तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र तक ये नियत क्यों नहीं की नमाज पढ़ते वक्त कि मुझे बेटा मिल जाए? ये तो हो सकता था, लेकिन इस नियत से नमाज नहीं पढ़ी गई। जिसने अपने मफाद की नियत से नमाज पढ़ी वो नमाज तिजारत है, वो इबादत नहीं है। वही नमाज इबादत है जो अल्लाह की याद के लिए पढ़ी जाए। जिसमें अल्लाह की याद ना हो वो नमाज नमाज ही नहीं है। जो नहीं पढ़ते उनका तो रोना है, जो पढ़ते उनका तो दोहरा रोना है कि अल्लाह की याद कब आती है नमाज में। मैं ये नहीं कहता, देखो नमाज जिस नीयत से पढ़ोगे वो मिलेगा। शक्कर के लिए पढ़ी तो मिल गई शक्कर, लेकिन फिर माने का शक्कर के लिए नहीं पढ़ना, खुदा को पाने के लिए पढ़ना। हैरत है, इतनी बड़ी करेंसी देकर इतनी छोटी चीज खरीदे क्यों? इतनी बड़ी करेंसी देकर इतनी छोटी चीज खरीदे क्यों? अरे नमाज के बदले में रोजी क्यों? नमाज के बदले में औलाद क्यों? जब नमाज में खुदा मिलता है तो खुदा को क्यों ना पाए? जब वो मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू। इतनी बड़ी करेंसी देकर इतनी छोटी सी चीज खरीद के ये खसारा नहीं है तो और क्या है? यहां वक्त में बहुत किल्लत है। हमारे किबला हुजूर अमीर मोहतरम का मुझे हुक्म है कि 11:35 तक अपनी गुफ्तगू खत्म करना है, लेकिन बात यहां उठी एक आ गई तो मैं आपसे अर्ज करूं, नमाज जिस नीयत से पढ़ोगे जिस नीयत से पढ़ोगे वो मिलेगा, जिस नीयत से नमाज पढ़ोगे वो मिलेगा। कमेंट शेयर जरूर करिए।